Okay, let me start. So today we start our third unit, right? And our third unit is what it is. Just wait 2 minutes. We'll see how many of join and then we'll start. Okay. How are you, all of you? Fine. What about your project? It's going on or not? Maybe everyone is completed. What kind of changes need to be do you? And then just approve your your hard copy, and then you take final print and submit it. Okay. Okay, ma'am. Yeah. And just inform us. Actually, one is in group and no one in response. So today we have seen our third unit, investment decisions, and the part of operating cycle methods. Here we calculate debtors ratio, some kind of ratios, okay, and definitely ask in your examinations. Okay, so yeah, 9 people are there. See, operating cycle method, how we calculate it. You know, in account, in finance, it's a cycle is going on. Okay, every time we need to be conscious to calculate any kind of ratio, any kind of item. Okay, so especially when we are posting entry in one account to another account. So this is the cycle. Okay, when you are working in industry or factory, so that time you focus on your work because it's going on unit wise, meter wise, liter wise. Okay, because big company have a big turnover. Okay, so they never 1 crore 1,000,000. They just 1 and write down CR. Okay, and if you have seen the other companies reports in website, so you have find like that 1,000 crore, 500 crore. Got it? So when you calculate ratio, that time keep in your mind ki what is exact amount. 5 crore means 5 rupees nahi. Okay, so be cautious when you calculate. I have seen lot of people project, they never mention of tables, charts, calculations. NPA का project कर रहे हैं, non performance asset का, so definitely you have to just prepare a list of NPAs. किसी ने भी नहीं लगाया NPA का लिस्ट, और बैलेंस शीट मस्ट है. ठीक है, आप अपने जो भी SIP के प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें आप कंपनी का बैलेंस शीट लगाइए. ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी हम जो ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स पे जो भी लर्न करेंगे उसमें जितना भी कैलकुलेशंस है ऑपरेटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, डेटर्स का, फिनिश गुड्स का, ठीक है, वो देखेंगे. जैसे अभी आपको ये साइकिल पता है कि रॉ मटेरियल, जब हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है तो उस पे हम वर्क इन प्रोग्रेस चालू कर. जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम कहीं, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, सैंड, उसका जो भी है सीमेंट्स एंड ऑल, देन वो मिक्स करते हैं एंड देन विल स्टार्ट. सो दैट विल कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, रॉ मटेरियल आया, ठीक है, या फिर कैश में परचेस करते हैं या फिर डिजिटलाइजेशन जो भी है, तो रॉ मटेरियल आया, उसका सब ये करके वर्क इन प्रोग्रेस. देन फिनिश्ड गुड, आफ्टर कंप्लीशन के बाद जो भी बच जाता है स्टॉक, फिनिश गुड्स, इट्स कॉल्ड स्टॉक सॉरी, तो उस स्टॉक को हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं. देन डेटर्स, आफ्टर दैट हमारा कलेक्शन चालू होगा कि जिनको भी सेल किया है
उनका कलेक्शंस या तो कैश में हो सकता है या बैंक में. सो दैट इज, सो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन. एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो हमने वही देखा है कि एक प्रोजेक्ट खत्म, दूसरा, दूसरा, तीसरा. तो इसी तरह से जो साइकिल है वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलेगी. सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म. एवरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. देन कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ट्रेडिंग फर्म, जो ट्रेडिंग कंपनीज है जो होलसेल पे मटेरियल सेल परचेस करती है, तो वो भी क्या करती है, कैश उनका कितना आ रहा है, फिनिश गुड्स कितना है, डेटर्स कितना है, एवरी डे वो सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल वन बाय वन, राइट. सो नेक्स्ट, हैव यू सीन माय पीपीटी? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Next, some theoretical part is there. This will start problem. So there is a cycle from cash to raw material and the work in progress, and it reaches finished goods, again converted into cash. ठीक है? Again starting, again daily basis पे वो होगा और cash में convert होता जाएगा. So this pathway is called operating cycle. This pathway is called ऑपरेटिंग साइकिल. कंटिन्यूअसली एक फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर सेल होगा, फिर मार्केट में सेल होगा, फिर से कैश आएगा. डेफिनेटली डेली बेसिस पे ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू होगा. ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ इज अ डिफर फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना मटेरियल को. सो मोर द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, then more the risks of working capital inadequacy. Sometimes it's happened कि मटेरियल नहीं होने की वजह से या इनसफिशिएंट मटेरियल होने की वजह से स्टॉक क्या हो जाता है या वर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. समथिंग इज हैपेंड. बट जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो क्या करती है, मैक्सिमम स्टॉक. समटाइम्स इट्स हैपेंड, समटाइम्स. ओके, सो कभी कभी. So now how we calculate operating cycle format. So this is the format, how you calculate days. So first what we take, raw material storage period. कब से वो raw material storage करके रखा हुआ है. So we'll just say कि raw material storage period जो actually आपको problem में दिया रहेगा. Now उसमें ऐड क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड. मतलब कितने दिन आपका वर्क इन प्रोग्रेस था और कितने दिन होल्ड था. Okay, so that period you need to add. Finished goods or holding period. Finished goods जो बचा हुआ स्टॉक था वो कितने दिन तक का था, कितने दिन, कितने पीरियड का था, उतने पीरियड का रहेगा. जैसे एक महीने का, एक साल का है, जो भी है. सो वो अगेन ऐड करना है. डेटर्स कलेक्टेड पीरियड. डेटर्स जो है कलेक्शन का पीरियड कितने दिन तक था. 365 होता है ना साल का, बट डेफिनेटली किसी का 6 मंथ्स का होता है, किसी का 80 डेज का, 90 डेज का, 30 डेज का. सो डिपेंड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. गॉट इट? नाउ लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. क्रेडिटर्स है ना, जो भी क्रेडिटर्स रहेंगे उनका जो पेमेंट का पीरियड है, उनका कब आने वाला है, कब देने वाले हैं हम. क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जो बैंक गारंटी बोलो या लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं तो वो मैक्सिमम 90 डेज का ही होता है ना. तो अगर वो पीरियड को बढ़ाना है ड्यू टू सम कॉज, ड्यू टू सम लैक ऑफ मनी, इनसफिशिएंट फंड, तो हम एक महीना बढ़ा सकते हैं. ठीक है, 120 का भी कर सकते हैं. तो वो भी हमें ऐड करना है. मैक्सिमम 90 डेज होता है. सो एंड आफ्टर दैट यू कैलकुलेट एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. गॉट इट? नेक्स्ट, ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पीपीटी शायद आप इस पर देखा है आपको पीपीटी की यूनिट 1 यूनिट 2 की. एक बार चेक कीजिए वेबसाइट पे, मैंने परसों ही डाला है, सैटरडे को ही अपलोड किया है. ठीक है, पीएम का भी कल तक हो जाएगा. नेक्स्ट, और आपके सीसीज भी अपलोड हो चुके हैं. किसी को कोई दिक्कत हो फाइनेंस में तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नो इशू. बट ऑल सीसीज इज कंपल्सरी, यू नो वेरी वेल. ओके, सो फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है ना. ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के ये सारे फॉर्मूलेज है, तो ये आपको पता होने चाहिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो इशू. सो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. हाउ वी कैलकुलेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है
stock of raw material divided by cost of raw material assumed into 365 days data collection period. Got it? So this is the raw material storage period formula. If in problem you ask calculate raw material storage period, so you need to know, about the formula, and that is average stock of raw material divided by cost of raw material consumed into 365 days. Every item cost mention in your problem, right? Next work in progress holding period. The formula is work in progress holding period. What it is? Average stock of work in progress divided by cost of work in progress consumed divide into 365. Average stock of work in progress divided by cost of work in progress consumed into 365 days. Got it? Now finished holding period, finished goods है ना, जो लास्ट में एंड में कुछ बच जाता है ना स्क्रैप में, सो दैट इज फिनिश्ड होल्डिंग पीरियड. कितने दिन का बचा था? 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का या मंथ का. सो दैट इज the formula is average stock of finished goods divided by cost of goods sold into 365. What it is? Average stock of finished goods divided by cost of goods sold into 365. Got it? Now data collection period. How we calculate data collection period? Average accounts receivable. Average accounts receivable divided by credit sales. Credit sales into 365. Next, creditors payment period. What it is? The formula is average accounts payable divided by credit purchase. Average accounts payable divided by credit purchase into 365. Sorry. Okay, next. Here we calculate and we'll solve the problem. Okay. Is compute the operating cycle in days from the following information extracted from the books of manufacturing company. What it is? Compute the operating cycle in days from the following information extracted from the books of manufacturing company. Manufacturing company के books में हमें operating cycle calculate करना है. आपको प्रॉब्लम में भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहेगी. पीरियड कवर्ड 365 डेज की इंफॉर्मेशन है, होल 365 डेज. नेक्स्ट, एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स. कितने थे? एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स, हाउ मच इट इज? 4,80,000. ठीक है. एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, हाउ मच इट इज? 44 lakhs. Average work in progress consumed, how much? 1 ना दिया है 1 crore. Average cost of goods sold 1 crore 5 lakhs. Average raw material stock rupees 3,20,000. Average work in progress stock rupees 3,50,000. Average finished goods in stock rupees 2,60,000. Total sales of the year कितना था? 1 crore
60 lakhs total sale, and credit allowed by suppliers means creditors. How much? Only 16 days. Depend. Got it? प्रॉब्लम समझ में आया क्या? कोई है जिन्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? ओनली यूज टू फॉर्मूला? yes or no? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Let me start and it. See, first, what we calculate? Raw material holding period. Okay, as per the this फॉर्मूला है ना, हाउ वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल. अभी हमें भी यहाँ पे बोला है ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. ओके, 5 आइटम्स को हमें कैलकुलेट करना है. प्रॉब्लम में सारी चीजें दी है, हमने देख ली है. नाउ सॉल्यूशन. चलिए लेट्स स्टार्ट. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. सबसे पहले हमने क्या करना है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. फॉर्मूला इज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365. ओके, सो एवरेज raw material holding period is equal to average stock of raw material. How much given problem? यहाँ पे दिया है average stock, average raw material कितना है? 3,20,000 divided by raw material consumption कितना है? raw material consumption कितना है? raw material consumptions देखिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 44 lakhs. ओके, सो कैलकुलेट करिए इनटू 365. 27 डेज आता है क्या? बताइए फट से. जस्ट कीप योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड्स. आता है. Yes? आता है मैम. 3,20,000 divided by 44 lakhs. Yes, correct. Now, next, work in progress holding period है ना? As per work in progress holding period हम इस वे से कैलकुलेट करेंगे. सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है. कैलकुलेट करिए वर्क इन होल्डिंग पीरियड. सो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हाउ मच इट इज? प्रॉब्लम में दिया है 3,50,000 है ना. एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक 3,50,000 डिवाइडेड बाय work in progress consumption, work in progress consume, average work in progress consume. कैलकुलेट करिए into 365. 13 डेज आता है क्या? yes. कोई है जिनको समझे नहीं है? फिर से बताना है. yes, anyone? let me बोलिए. so we'll start again. No? Good. Next, कितना आया? 13 आया. यहाँ पे गलत भी हो सकता है. आप you just calculate on your base. 3,50,000 divided by 1 crore. It's not a 1 lakh. Yes? Is it? Yes, आया क्या? 12 point something आ रहा है. 12.775. हाँ, तो 7 above है इसलिए 13 उसको राउंड में ले रहा है. बिकॉज इट्स अ क्या है ये? वर्क इन प्रोग्रेस है ना. पॉइंट में नहीं आएगा ना, ये डेज में आएगा. राइट? तो डेज तो हम आधा तो नहीं पकड़ते, पूरा ही पकड़ते हैं, इसलिए उसको 13 डेज कहिए. पीरियड आया है तो डेज में ही कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखिए. नहीं तो डेज लिखना भूल जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल रहे हैं.
तो पीरियड में हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो डे के हिसाब से ही आएगा. गॉट इट? समझ में आया क्या? Yes, ma'am. हाँ, ध्यान में रखिए वर्ड्स क्या है, नहीं तो आप 27 था लिख के छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. Here we are calculate period, operating cycle period. Okay. Next, finished goods holding period. Finished goods holding period. Calculate करिए. क्या है फॉर्मूला? Average finished goods divided by finished goods consumption into 365. चलिए कैलकुलेट करते हैं. एवरेज फिनिश गुड्स हाउ मच इट इज. चलिए प्रॉब्लम में चेक करिए कहा है. देखिए एवरेज फिनिश गुड्स इन स्टॉक 2,60,000 राइट, डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स कंजम्पशन. कितना दिया है फिनिश गुड्स कंजम्पशन? फिनिश गुड्स कंजम्पशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 1,05 लाख है ना. Finished goods means cost of goods sold, consumption. Cost sheet में सीखा होगा ना आपने? Yes, ma'am. Yes. So 2,60,000 divided by 1,05 lakhs into 365. How much it is? 9 days. आया बराबर 9 days? Yes, ma'am. Okay. Next. डेटर कलेक्शन पीरियड. कैलकुलेट करिए. डेटर कलेक्शन पीरियड ये तो सबको पता ही है. एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स. अब एवरेज डेटर्स कितना दिया है ना. एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स 4,80,000 एंड सेल्स आपको कितना दिया है? टोटल सेल 1,60 लाख. तो डिवाइड करिए. 4,80,000 divided by 1,60 lakhs into 365. 10.95. 11, right? Yes. Next, अभी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना दिया है? 16 days है ना. कुछ छूट गया है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना दिया है? ओनली 16 days दिया है. तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालो. एवरेज अकाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस. एवरेज अकाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस. अब यहाँ पे क्रेडिट परचेस दिया है क्या? नहीं दिया है. ठीक है, तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि क्रेडिट सेल नहीं दिया. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट पेमेंट का पीरियड हमें दिया है. अगर हमें पीरियड नहीं दिया रहता था तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था. लेकिन प्रॉब्लम में उन्होंने दे दिया है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स ऑन दी 16 days. ठीक है, अगर हमें ये नहीं दिया रहता था क्रेडिट अलाउड बाय 16, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ता था. क्रेडिट पेमेंट पीरियड एवरेज अकाउंट्स पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस. अब हमने जो प्रॉब्लम किया इसमें क्रेडिट परचेस कहीं पे भी दिया नहीं है. उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 16 days. सो ऑन दैट बेसिस सारे फॉर्मूलेज यूज करने के बाद जितने भी डेज आए हैं उन डेज को हम उन डेज के साथ हम कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे इन डेज में. ठीक है, तो ये हमने सारे फॉर्मूलाज यूज करके सबके डेज निकाले. अभी हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है, तो चलो सबको ऐड करो. सबसे पहला रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना निकाला आपने? 27 निकाला. ठीक है ना. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, हमने देखा, ये देखिए है ना. ऑपरेटिंग साइकिल फॉर्मेट, ओनली यूज दिस फॉर्मेट. ओके, सो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना आया आपका? 27 आया क्या? उसमें ऐड करिए वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कितना आया था? 13 days.
फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड आपका 9 डेज आया था, देन उसमें ऐड करिए डेटा कलेक्शन पीरियड आपका 11 डेज आया, और लेस क्रेडिट पेमेंट हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है 16 डेज का, तो कैलकुलेट करिए आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 44 डेज आता है क्या? यस, Yes, आता ma'am. है? डन और नॉट डन? Done, ma'am. गुड गुड, वेरी गुड. सो ऑन दैट बेसिस हमें ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने हैं. कोई है जिन्हें समझ में नहीं आया या फिर से बताना है? फॉर्मूलाज बेस है ये सब. नेक्स्ट, सो कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग में क्या है कि प्लानिंग, ये तो हमने देखा है कि विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते. अभी इसी बेस पे हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है ना. पेबैक पीरियड ध्यान में रखिए, पेबैक पीरियड. सबसे पहले तो हमने क्या किया, कैश फ्लो फंड फ्लो बनाया है ना, अज्यूम करके कॉस्ट शीट्स के बेस पे, या फिर आपका जो भी अकाउंट्स था उस बेस पे, है ना. फिर उसके बाद हमने सारे इन्वेस्टमेंट देखे, उसका ROE ROI सब कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने डेटर्स कलेक्शंस ये वो सब कैलकुलेट किए. अभी हम देखेंगे पे बैक पीरियड. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट रिवर्स रेट क्या होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कैपिटल बजट में पहले प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग फॉर कैपिटल असेट्स, कितनी एसेट्स होनी चाहिए अज्यूम करना है, और उसी के हिसाब से हमें चलना होता है. सो उसमें हमें कैपिटल प्लानिंग फॉर कैपिटल असेट्स के लिए हमें पे बैक पीरियड लगता है. कितना पीरियड, जैसे हम अभी देखे ना 16 डेज का, 19 डेज का, कितना, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू जो प्रॉब्लम में दी रहेगी, और उसका इंटरेस्ट रिवर्स रेट जो भी रहेगा. नेक्स्ट, सो बजट का डेफिनेशन सबको पता है कि अभी आपने देखा होगा बजट. कोई है जो रेगुलर न्यूज पढ़ता है या न्यूज देखता है रिगार्डिंग? नहीं पता? हाँ कि नहीं? टाइम ही नहीं मिलता है आपको, राइट? चलिए, सो कैपिटल बजटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशंस, उसमें सारी स्टेप्स दी है कैपिटल बजट की, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट, अप्रेजल, सारी चीजें उसमें दी हुई है. सो बजट इज मैनेजमेंट टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्यूचर एक्टिविटी. ये सबको पता है कि बजट में फाइनेंशियल प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. बिंडल. सो सेक्टर बिजनेस, स्टार्टअप में बजट लगता है, कॉर्पोरेट बिजनेस में बजट लगता है, गवर्नमेंट बजट डिफरेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट, पर्सनल फैमिली बजट होता है. बजट के बहुत सारे, तो जो बनाता है उसे पता है ना. सो बजट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैं आप इमेजिन नहीं करोगे, मैंने 15 to 16 ईयर्स हो गए हैं, मैं एवरी ईयर में बजट बनाती हूँ. ओके, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट. मतलब कितना आ रहा है, कितना गया, कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. आपके क्या गोल्स है, क्या अचीवमेंट है, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजों का बजट हमारे पास होना चाहिए. सो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बजट वर्किंग करने से. फिक्स एंड वेरिएबल बजट्स, बेसिक ऑफ टाइम पीरियड मच इंपॉर्टेंट. जैसे आपके गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. देन बेसिक ऑफ फंक्शनलिटी, है ना, उसमें सेल्स बजट होता है, कैश बजट, जैसे कैश फ्लो बनाया, फंड फ्लो बनाया,
ठीक है। देन प्रोडक्शन का बजट अलग होता है क्योंकि डेली बेसिस पे उनको उतना आइटम प्रोड्यूस करना होता है। मार्केटिंग का बजट होता है कि मार्केट में ये मंथ का 30 डेज का टारगेट होता है, कितना अचीव करना है, कितना सेल करना है। प्रोजेक्ट का बजट होता है जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऑलरेडी देखा है ना, किस तरह से हमें बजट बनाना है और किस तरह से प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट करना है। देन रेवेन्यू बजट होता है, कितना कैश आया है, कितना आएगा, कितना एक अज्यूम करके चल रहा है 30 डेज का या ईयरली या फिर मंथली बेस पे। मंथली बेस पे दैट इज बेटर। कैश फ्लो, कैश बजट, इट्स इम्पोर्टेंट। सो सब जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ना, सारे कनेक्टेड है एक एक के साथ, ताकि आपको इजीली समझ सके। सो दैट इज अ बेसिक ऑफ फंक्शनैलिटी। मतलब हर बजट अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए कि एक ही बजट में सारी चीजें आ जाती है। मैंने आपको एक बार शेयर भी किया था डाटा, फिर से आपको बताती हूँ कि बजट कैसा होता है। वेट अ मिनट, आई जस्ट चेक माय ड्राइव, अगर इसमें है तो आपको दिख ही जाएगा। अभी आ ही गए हैं हम इसमें। Wait a minute, we'll share my screen and show you how companies prepare budgets in different year. मैंने दिखाया था ना आपको शायद, yes or no? नहीं दिखाया था क्या? हाँ कि नहीं? नो मैम। नहीं दिखाया था, चलो कोई बात नहीं, अभी देख लो तो आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको भी एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? तो अभी आप देख लीजिए तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये मैंने जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी तो उस हिसाब से मैंने जो वर्किंग किया है वही आपको दिखा रही हूँ। MIS क्या होता है और कैसे उस पर वर्क करते हैं, ऑल थिंग विल शेयर विथ यू टुडे। सो लेट मी चेक 1 second. ये देखिए, आपको बता रही हूँ कैश फ्लो। Wait a minute. Then we'll share you some MIS. Yes. यस, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। यस, ये देखिए, ये बजट था 11-12 का। कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ब्रांच है पूना, ईयर एंडेड वॉटएवर। तो बजट बनाते वक्त क्या किया है, फॉर्मेट देखिए, जो मैंने प्रोजेक्ट में दिखाया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दिखाया था, वही फॉर्मेट है। एक्चुअल लेना है, एक्चुअल, ठीक है। बजटेड, ये बजटेड है, मतलब जो एज्यूम्ड है, ठीक है, डिसाइड किया गया है। ये मंथली है, मंथली आज तक का, और ये मंथली बजट। अब इसमें करते वक्त क्या क्या किया है देखिए, अप्रैल में का दिया है, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टिल मार्च तक, ठीक है, ऑल मंथ का। अभी रिसीट्स, ठीक है, अभी यहाँ पे जो रिसीट्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, EMS, मतलब जो प्लांट है, जो वहां पे पूना ब्रांच में जितना भी था, है ना, कहाँ से पैसा आ रहा था, रेवेन्यू,
मॉनिटरिंग से, वाटर मॉनिटरिंग से आ रहा था। ये एनवायरमेंट कंपनी है ना, हैजार्डस वेस्ट एंड एनवायरमेंट कंपनी थी, वहां से जो रिसिट आ रही थी वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे। देन एस्टेब्लिश ऑपरेटिंग से कितना इनकम आ रहा है, एनवायरमेंट एंड असेसमेंट से कितना आ रहा है, ईटीपी प्रोजेक्ट है, एसटीपी प्रोजेक्ट है, उससे कितना आ रहा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से कितना आ रहा है, ऑडिट से कितना आ रहा है, एंड रिसर्च से कितना आ रहा है। तो हमने रिसर्च क्या कर लिया सर, जैसे आपको भी एक छोटा सा मैंने बोला था कि कोई भी छोटा सा जैसे पार्लर का हो, ड्रेस डिजाइनिंग का हो, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे सारे मंथ का या मंथली बनाना है या 6 मंथ का या ईयर का, ऐसे ही आपको फॉर्मेट तैयार करने हैं, ठीक है। एक्सेल में, एक्सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रही हूँ, जिनका एक्सेल अच्छा होगा ना वो रियली बहुत जल्दी उसको प्लेसमेंट मिलेगा, प्लीज, ठीक है। कीप प्रैक्टिस इन एक्सेल। सो ये हेड ले लिए, जैसे आपको भी मैंने बोला एक शॉर्ट कोई भी ले लीजिए स्टार्टअप का, जैसे होटल का है, ठीक है, तो होटल में कौन से आइटम्स है वो सारे आइटम्स आएंगे, है ना, उस हिसाब से। फिर अभी ये जो एक्चुअल है और ये बजटेड है, ठीक है, इसे हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो हम बजट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अप्रैल में मैंने ये इसका बजट डिसाइड किया कि मुझे अप्रैल में 1 करोड़ या फिर 1,15,000 आएंगे, में भी मैंने सेम ही रखा, जून में भी मैंने सेम ही रखा, बिकॉज इट्स अज्यूम, ज्यादा आया तो गुड एंड वेल, कम आया तो ठीक है। और ये अज्यूम मैंने किस बेस पे किया, लास्ट ईयर के बजट के साथ कंपेयर किया, लास्ट ईयर के बजट के साथ मैंने कंपेयर किया है। ये देखिए यहाँ पे कैश फ्लो पहले बनाया है ना, दिख रहा है सबको कैश फ्लो, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो पहले कैश फ्लो में भी सेम किया है, सारे बैलेंसेस लिख लिए, ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक से, कैश से, है ना, जो रिकंसिलेशंस बनाते हैं उस बेस पे। फिर इनफ्लो कहाँ से है, पेमेंट आ रहा है, उन सब का अप्रैल से लेके मार्च तक का क्या किया मैंने, मंथ वाइज इनफ्लो, मतलब जहां जहां से पैसा आने वाला है उसका अज्यूम करके बनाया। आउटफ्लो कहाँ मुझे खर्चा करना है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने होने वाले हैं मेरे मंथ वाइज, मैन पावर एक्सपेंसेस, सैलरी कितनी जाएगी मंथ वाइज, एडमिन कॉस्ट कितनी जाएगी मंथ वाइज, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख लिए, टोटल कर ली A-B जो भी आया। देन यहाँ पे जो भी आया वो टोटल A-B, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, हर शीट में फॉर्मूलाज है, देखिए आ रहा है ना ऊपर, तो ऑटोमेटिकली कंसर्न है ये एक शीट का दूसरे शीट के साथ, ये बनाना आना चाहिए, बहुत लॉजिकल है, एक बार सीख गए ना तो कोई भी कंपनी में इजीली वर्क कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट, फॉर्मूलाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, और यही आपको एक्सेल में सीखना है, दैट इज एडवांस एक्सेल, ठीक है। टोटल कैश बजट बनाया और कैश बजट के साथ में कैश फ्लो बनाया, कैश के साथ मैंने ये पूरा बजट बनाया, ठीक है। तो मैंने पूरा रिसीट ले लिया इधर साइड में। फिर एक्सपेंडिचर क्या क्या होने वाले हैं मेरे, वो सब डाल दिए, जैसे वाटर का वर्क है तो लैब का एक्सपेंसेस रहेगा, क्योंकि सारे जो ये है सैंपल्स है वो वाटर के लैब में आएंगे चेकिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी केमिकल्स है वो, फिर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा, सारे एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, है ना, हर एवरी प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, तो उस प्रोजेक्ट को क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं वो सब लिया। मैन पावर एक्सपेंसेस में मैंने सैलरी और वेजेस, जितने भी ऑपरेटर की सैलरी है वो सब ले लिया। देन एडमिन कॉस्ट डिसाइड कर ली, एडमिन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, लीगल, ऑफिस, सारे अपने हेड के हिसाब से, ठीक है। फिर टोटल करके मैंने जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अभी ये जो नेट प्रॉफिट है ये मैं जो एक्चुअल आएगा उसके साथ कंपेयर करूंगी। मान लीजिए अप्रैल मंथ में जो बजट है अप्रैल का मेरा कितना है, टोटल रेवेन्यू मुझे अप्रैल में कितना आना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा 25 हुआ या 24 ही हुआ, नो इशू, ये एक्सपेंसेस भी मेरे ये जो बजटेड है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, गॉट इट। जो आपने बजट डिसाइड किया है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट जब भी आप बजट डिसाइड करते हो तो 1-2 ज्यादा ही लेके करता है, तो इसके ऊपर, हाँ पैसा अगर ज्यादा आता है तो नो इशू, बट जो एक्सपेंसेस आपने डिसाइड किए हैं यहाँ पे ना,
वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। या तो आप पहले से कंसिडर करके चलो ज्यादा, हाँ समटाइम्स इट्स हैपेंड, कभी होगा 1-2 लाख का, बट वहां पे रीजन होगा, है ना। बट कुछ भी नहीं दिखा सकते, ध्यान में रखिए। अगर ये ओवर हो गया तो आपका प्रोजेक्ट पूरा गया काम से। तो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ, सारे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, सब एक में एक से इंटरकनेक्टेड है। एक बार ये शीट आपने प्रिपेयर कर ली तो बार बार आपको इसके फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, हर बार इसे ही नई शीट बना के इसमें सिर्फ नंबर्स डालूंगी, ऑटोमेटिकली सारी टोटल मैच होगी, ऑटोमेटिकली। गॉट इट। सो ये जो एक्सपेंसेस आए हैं, तो नेट प्रॉफिट जो होगा मेरा अप्रैल का कितना था, 545। ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो गुड एंड वेल, बट कम नहीं होना चाहिए इससे। अगर कम हुआ तो आपको रीजंस देने होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको अपना कैश फ्लो भी बनाना है और आपको क्या बनाना है, इसका बजट भी बनाना है। ओके, नेक्स्ट वांट टू शेयर विथ यू व्हाट इट इज। अगर आप हाँ, जैसे ये अकाउंटिंग का डाटा है, मैंने जैसे हम लोग एसएपी में काम करते थे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता था, रिपोर्ट जनरेट होता था। तो उस रिपोर्ट को एक्सेल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये रिपोर्ट एक्सेल में कन्वर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे पेमेंट कितना हुआ, ये रिकंसिलेशंस है सारे बैंक के साथ मैच किए हुए, ठीक है। कहाँ कहाँ से पेमेंट आया है, कहाँ कहाँ किसको दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैच, क्योंकि ये फॉर्मेट बने हुए हैं। सारे बैंक के रिकंसिलेशन, जितने भी बैंक थी 25-30, ठीक है, ये सारे बैंक के रिकंसिलेशन, कहाँ कहाँ किसके किसके बुक्स में कितना कितना बैलेंस था एज ऑन डेट, सारे रिकंसिलेशन कंसोलिडेटेड, सब बैंक का एक, ठीक है, सब बैंक का एक रिकंसिलेशन मिला के। देन कैश फ्लो, मंथली कैश फ्लो, ये ऐसा वर्क होता है। ऑटोमेटिकली एक बार आपने बना लिए तो वो ऑटोमेटिकली उस हेड में चला जाता है, सिर्फ आपको डेट और ये ही चेंज करनी होती है। बट ये सीखने के लिए बहुत फोकस और कंसंट्रेशन लगता है। ओके, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप भी कई काम कर रहे होंगे तो आपको भी ये सारा पता होगा, मे बी। समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. yes, so excel is most important. Okay, next we need to share with you what it is. Yes, same bank reconciliation and all. Okay, this is, now we need to share MIS. Let me see, MIS is there or not, where it is. Budgeted cash flow and all, lot of things we are making. Okay, so this is the, मतलब कोई भी देखिए कितने अच्छे से फॉर्मेट में आप पे है, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, कितना अच्छे से आप उसमें डाटा इनपुट कर सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है ये। मतलब आप जब प्रेजेंट करोगे ना ऑन दैट टाइम, इट्स रियली, मतलब आप बहुत अच्छे से, उसे दिखने में भी अच्छा दिखता है, और सामने वाले को अगर आप कोई चीज को हाईलाइट करते हो तो वो भी अच्छे से समझ में आता है। फाइल So में that पूरा is, नहीं दिखता। yes, ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हुआ है मैम। क्या दिखा रही है आपको? नो मैम। ओके, 1 सेकेंड विल, अभी दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। ओके, न्यू शेयर, वेट अ मिनट, मुझे ये क्लोज करने दीजिए फिर वो चालू होगा। यस, कहाँ गया? बंद हो गया, 1 मिनट।
MIS working चलिए ठीक है। आपको दिखाना है हाँ, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. हाँ, so this is the MIS. Okay, MIS means monthly ended report. ठीक है, कंसोलिडेटेड MIS मतलब जितनी भी कंपनीज है उनका कंसोलिडेटेड। तो उसके लिए पहले मुझे मंथ वाइज मुझे कंपनी वाइज सबका MIS बनाना पड़ा। MIS में मैंने क्या क्या लिया कि एक्चुअल इनवॉइसिंग कितना हुआ, बजटेड इनवॉइसिंग कितना था, उसका वेरिएंस निकाला दोनों को डिवाइड करके एक्चुअल के साथ बजट। तो उसका ईयर टिल डेट में ये आया, YTD मींस ईयर टिल डेट, अमाउंट ईयर टिल डेट में, और आउटस्टैंडिंग डेज जैसे अभी हमने फॉर्मूलाज यूज किए ना, सेम वही फॉर्मूलाज यूज करके हमें आउटस्टैंडिंग डेज भी निकालने होते हैं कंपनीज में। ठीक है, ये हो गया आपका MIS सेम फॉर्मेट। देन आपका एक्चुअल कितना रहता है, तो एक्चुअल में भी आप इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए कंपनी वाइज बनाया है ना, जैसे डेट, नंबर ऑफ डेज, फिर MAPL कंपनी का, VEPL जितनी भी कंपनीज थी, BCPL का, सब में लिख दिया। MTD मंथ टिल डेट में क्या होगा और ईयर टिल डेट में क्या होगा, मंथ के एंड में क्या होगा, ईयर के एंड में क्या होगा, BCPL सारी कंपनीज। दिस इज द फॉर्मेट, प्रैक्टिस करिए आएगा। देखिए इन सारी कंपनीज का कितनी बड़ी शीट हुई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, और हर एक का अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस इन इनवॉइस फ्रॉम लास्ट 19 डेज, इसके लिए बहुत जागना पड़ता है बच्चों, मतलब रात रात भर काम करना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हो। ऐसे ही मैनेजर नहीं बनते हो कंपनी में, यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, सो ये सब प्रूफ करना होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेज कंपनी वाइज, एवरी कंपनी वाइज, सारे रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेट्स बना के आप उसमें कर सकते हो। जैसे अप्रैल का ये मंथली था, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। ये सारे फॉर्मेट्स है जो बनाने पड़ते हैं। बजट ऑलरेडी कंपनी वाइज बन चुका है, आज का कितना था, मंथ का कितना होगा और ईयर का कितना होगा। ठीक है, ये एक कंपनी का हो गया, सेकेंड कंपनी का सेम, थर्ड कंपनी का सेम, ऐसे करके मेरी अगर 50 कंपनीज होंगी तो 50 कंपनी का टोटल जो होगा मैं वो कंसोलिडेटेड में डालूंगी। ठीक है, सबका मिला के। देन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं कंपनी के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, अप्रैल में कितना था, मई में कितना था, वो सारा फिगर। देन ये सारे इस तरह से आपको एक एक शीट में वो सारी कंपनी का, जैसे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना कोई भी प्रोजेक्ट में, तो ऐसे ही अगर आप सारा वर्क ऐसे मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली यू विल प्रेजेंट वेरी वेल। और सारी फिगर, क्योंकि इतनी सारी फिगर्स होती है माइंड में नहीं रहती, लेकिन अगर आप ऐसे शीट्स में उसे अपडेट करके रखते हो तो यू नो दैट यस इट इज। अभी तो GST के भी सारे फॉर्मेट्स आ गए, उसी में अगर आप अपलोड करते हो, उसी में अच्छे से करते हो तो आप इजीली उसे अपलोड कर सकते हो, है ना, उसमें कोई आपकी क्वेरी नहीं आती है, कैलकुलेशंस परफेक्ट जाता है। समझ में आया कैसे बनाते हैं फॉर्मेट्स? yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes. so that is important. okay, बहुत सारे हैं ऐसे, MIS है, कंसोलिडेटेड है, PBIT है, ऐसे बहुत कुछ है जो हम निकाल सकते हैं। एक लास्ट वाला भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको डाउट जो है वो क्लियर हो, एंड दैट इज दिस PBIT। ठीक है, कंसोलिडेटेड MIS। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया, एक्चुअल मतलब पिछले साल का लिया पहले 10-11 का, और बजटेड मुझे ये मतलब बनाना है तो 11-12 का बजटेड रहेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले का वाला चाहिए कि पहले ईयर में मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ऑन दैट बेसिस पे मैं ये बनाऊंगी। अभी एक्चुअल में आप देखिए कितना था मेरा प्रॉफिट, रेवेन्यू में 1,88 लाख या 18,81,000 था। बजट में मैंने कितना लिया, क्योंकि ज्यादा ही होगा ये अज्यूम करके मैंने यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके लिया है। वो सब सीखने को मिलता है, सारे ट्रेनिंग्स मिलते हैं जब अगर आप उसमें काम करते हो कंपनीज में, ये सारे ट्रेनिंग आपको मिलते हैं। तो रेवेन्यू कैलकुलेट किया सारी कंपनीज का, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इतना आया, उसका PBIT निकाला
PBIT मीन्स प्रॉफिट बिफोर डिडक्ट इनकम टैक्स, राइट। सो ये आपका PBIT का फिगर आया, परसेंटेज निकाला। अब इसमें देखिए फॉर्मूला लगा है H18 डिवाइडेड बाय C18, ठीक है। मतलब PBDIT H18 है ना, ये देखिए H18 डिवाइडेड बाय C18, तो आपका परसेंटेज इतना आया है। एवरी मतलब सारे कैलकुलेशंस आपको करने हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। ये बजटेड फिगर है जो लिया हुआ है, ठीक है। इसका भी रेवेन्यू सेम कैलकुलेट किया, मतलब ये बजटेड है इसलिए सेम फॉर्मूला N18 डिवाइडेड बाय S18, गॉट इट। इसका ये निकाला, ऐसे कंपनी वाइज मैंने सबका करके इसका वेरायंस भी निकालना होता है। माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में कितना परसेंट चलता है, प्लस में कितना परसेंट चलता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी। और ये सारे प्रोजेक्ट ही थे हमारे, ठीक है। हम ये प्रोजेक्ट में काम ही कर रहे थे, सारे करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स थे, तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ही था, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स सारे प्रॉफिट में ही होते हैं, राइट। तो ये सारे इस तरह से आपको शीट्स बनानी है कंपनीज में, इस तरह से आपको टेबल्स, वर्किंग फॉर्मूलाज ये सब आना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं। ये है, दैट इज द वर्क, दैट इज एक्चुअल वर्क दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। क्योंकि इसमें बहुत समय जिनको भी आता है, टाइम बहुत सेव होता है। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है शुरू में, बनाने के लिए तकलीफ होती है, बट आफ्टर दैट यू विल डू इट वेरी वेल। ये देखिए सब सारी चीजें budgeted, actual, everything you need to prepare. Yes. तो इस तरह से हमें सारे बजट्स में, सारे मतलब सेल्स का बजट, रेवेन्यू, है ना। अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं, मतलब बुक सीख रहे हैं, बुक लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट, बिकॉज आई डोंट नो कौन सी कंपनी में आप जाओगे, तो जहां जो कंपनी में जाओगे वहां के वर्ड यूज करना है। जैसे रेवेन्यू है ये, तो रेवेन्यू मीन्स सेल्स, है ना। तो जैसे अभी हमने देखा था कि किस किस तरह से हम बजट बनाएंगे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मार्केटिंग बजट, प्रोजेक्ट बजट, रेवेन्यू बजट, एवरीथिंग, कैश फ्लो बजट, गॉट इट। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको वही बोला था कि आप कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट का ना कैश फ्लो, बजट, ये सब बनाइए, तो उससे फिर आपको आइडियाज आएंगे कि प्रैक्टिसिंग यू मेक अ वेरी वेल। सो दैट इज नाउ बजट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। सो ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, कैपिटल में लार्ज अमाउंट आनी चाहिए, इरिवर्सिबिलिटी वो डिपेंड ऑन परसेंटेज एंड प्रॉफिट पे होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिस्क तो होती है, विदाउट रिस्क हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। अभी जैसे आप MBA के स्टूडेंट्स हो और अभी आप ये सारे कैलकुलेशन, स्पेशली फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है आपका, तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो एक्सेल्स में वगैरह, तो आप अपना खुद का बिजनेस इतना अच्छे से स्टार्टअप सकते हो, सारी चीजें, कि आपको बाहर के CA की या किसी इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ टू स्टार्टअप, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड, कैसे MIS बनाना है, कैसे कैपिटल को बढ़ाना है, यू नो एवरीथिंग। तो पहले मास्टर बनिए इन सब चीजों में, है ना। तो वहां पे आपके पैसे बचेंगे अगर आपको ये सारा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड कॉस्ट एंड ऑल अगर आपको अच्छे से आती है, ठीक है। सो बजट बनाने के बेनिफिट्स क्या है कि हम वी हैव सेव अ लॉट ऑफ मनी, है ना। हमें एक एजम्पशन मिल जाता है, जैसे हमें अंदाज होता है कि हमारा मंथली इनकम इतना है, तो इसी में हमको करना है ना। तो वो एक आइडिया आ जाता है। अगर पैसा बचता है तो हमें उस पे क्या करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या बिजनेस में ग्रो करना है, कौन सी स्कीम है, वो भी हमें पता करना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, है ना। देन प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन, प्रोजेक्ट वाइज आपको, जैसे अभी आपने फूड का बिजनेस कर रहे हैं, फूड में आपका क्या क्या आइटम दे रहे हैं, तो आइटम वाइज आपका बजट बनेगा। आइटम वाइज एक्सपेंसेस की लोगों, जैसे अगर आपने 3 आइटम रख दिए, है ना, फूड स्टार्टअप कर दिया फूड का, तो 3 आइटम रख दिए, जैसे कि मान लीजिए कोई वेज बिरयानी है या सादी बिरयानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है ना। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाइए। फूड में, आइसक्रीम की वेराइटी, लोगों को सबसे ज्यादा किसकी वेराइटी पसंद है, राइट। पार्लर्स में अगर आप कर रहे हैं, तो पार्लर्स में लोगों को किस चीज का, मतलब हेड मसाज या फेशियल्स या हेयर कट, या ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए, गॉट इट।
देन अगर आपको फर्नीचर का करना है तो फर्नीचर में आप क्या क्या आइटम्स दे रहे हो, लोगों को क्या पसंद है, अभी इनोवेटिव क्या आइटम लोग पसंद कर रहे हैं, उस तरह से न्यू समथिंग इनोवेटिव बनाइए। मैंने उसी दिन बोला था कि IIM के जो बच्चे हैं वो क्यों इतना अच्छा प्लेसमेंट मिलता है उनको 20-25 लाख का, बिकॉज दे आर इनोवेटिव, दे डू समथिंग न्यू। तो आप भी ऐसा कुछ नया करिए, कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिए। मुझे पता है प्रोजेक्ट में सभी लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, बट डोंट डू, इनोवेटिव बनिए, इनोवेटिव कुछ करिए, समथिंग न्यू। सारी चीजें तो है अपने पास, एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है आपके पास, ठीक है। सो दैट इज द स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। दिस इज द 8th स्टेप, दैट हैव अ गुड आइडिया, रियलाइज द नीड फॉर अ प्रोजेक्ट। क्या चाहिए आपके पास? एक अच्छी आइडिया चाहिए चलाने के लिए। कोई भी बिजनेस, गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो तो गोल्ड में भी वेराइटी है, राइट? ड्रेस डिजाइनिंग का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी वेराइटी है, लॉट ऑफ वेराइटी, एन नंबर ऑफ बिजनेस आ देयर। और अभी तो अपना MS जो है, सॉरी, हाँ, माइक्रो जो इनमें आपको लोन वगैरह दे रहे हैं, MSME, सॉरी, तो उसमें भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स है ना, 2-3 साल तक सारा, तो उसमें आप करिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। लुक फॉर सुटेबल प्रोजेक्ट। 10 प्रोजेक्ट में से आप ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए जो आपके लिए सुटेबल हो, कोई बिजनेस, ठीक है, जिसमें आपका 0 पैसा लगे। कैटरिंग का बिजनेस है, फूड का तो बिजनेस अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। देन आइडेंटिफाई एंड कंसीडर ऑल्टरनेटिव, है ना, सीजन वाइज आइडेंटिफाई कंसीडर अल्टरनेटिव, मतलब जैसे अभी सीजन वाइज फूड वालों का सीजन वाइज चलता है, तो अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो ठंडी चीजें को सप्लाई करना चालू कर दिए, ठंडी का सीजन है तो गर्म फूड्स को सप्लाई करना चालू कर, तो ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए, राइट? देन कैरी आउट फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है, जैसे 3 महीने ये चला, 3 महीने वो चला, 3 महीने वो चला, तो उससे क्या होगा, जिसमें ज्यादा बिजनेस होगा उससे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। गॉट इट? देन एनालिसिस ऑल्टरनेटिव एंड आइडेंटिफाई फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। एवरी टाइम ऑल्टरनेटिव आपके पास बंद नहीं करना है, कुछ ना कुछ करना है ऑल्टरनेट। मतलब आप ही सोचिए कि इतना पढ़ने के बाद आपके पास इतनी सारी आइडियाज है, तो आपका बिजनेस तो चलता ही रहेगा, है ना, पैसा तो आता ही रहेगा बिजनेस में, और उससे अदर लोगों को भी जॉब मिलेगा, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइटम्स आर देयर। अभी तो सभी जगह फूड में इटालियन, जैपनीज, क्या क्या निकल गया है, इंडियन तो अभी बहुत ही भूल गए हैं लोग, राइट? सो ट्राई समथिंग न्यू। यूट्यूब पे भी इतना चला अभी ये इसमें कोविड में, तो फूडी तो है, इंडियन पीपल आर टू मच फूडी, बहुत फूडी है, बहुत टेस्ट अच्छा चाहिए हम लोगों को, है ना, तो जहाँ टेस्ट अच्छा होता है वहां तो हम पहले जाते हैं, बार बार जाते हैं। नेक्स्ट 6 इज चूज द प्रोजेक्ट टू अंडरटेक, है ना, प्रोजेक्ट को ऐसे चूज करिए जिसे आप अंडरटेक कर सको, उसे आप चेंज कर सको इजीली, बिना किसी नुकसान के। मॉनिटर द प्रोजेक्ट अलोंग विथ रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसमें अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट आ गया, इसलिए मैंने ये दोनों आपको बता दिया, आपको सारे फॉर्मेट्स भी दिखा दिए, हाउ टू प्रिपेयर इट, सो इट्स रियली गुड फॉर यू। नाउ कैरी आउट पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, और ऑडिट तो इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल ऑडिट करना ही चाहिए, टैक्स हर साल पे करना ही है, अगर आप उस लिमिट में आते हो। अगर आप MSME में आते हो तो उसमें तो 5 लाख तक कुछ तो भी यही है, बट आपको रिटर्न 0 के रिटर्न फाइल करने ही है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना ही है ना। तो प्रोसेस के साथ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको नॉलेज भी आएगा। और अभी तो आप MBA स्टूडेंट्स हो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू लर्न लॉट ऑफ सब्जेक्ट, यू लर्न हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, एवरीथिंग यू लर्न। सो उसको अगर आप यूज करेंगे ये नॉलेज को, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे। गॉट इट? सो thank you so much. Tomorrow we'll start our next part, like how we calculate payback period, ठीक है, net present value and all. Okay, hope you understand well. Anyone have queries? Let me ask, and please try to make a short term period. 6 महीने का ही बना के दिखाइए या 3 महीने का ही बना के दिखाइए, but let's try. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay.
So bye bye, take care, good night to all of you. Bye, ma'am. Good See you night. tomorrow.